السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہیں شرمندہ ہم بنام سرکار۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اہلا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، ڈوب جائے ڈوب جائے۔ یہ مینار پاکستان ہے، یہ ہماری آزادی، خود مختاری، ہماری قومیت، ہماری آن ہے، شان ہے اور ہماری پہچان ہے۔ مینار پاکستان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو آپ کو قرارداد لاہور یاد آتی ہے، آپ کو قرارداد مقاصد یاد آتی ہے، آپ کو وہ مقصد یاد آتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا۔ لیکن کچھ دنوں سے خبروں میں جو کچھ ہوا اور جس وجہ سے مینار پاکستان کو یاد رکھا گیا، میں دہرانا نہیں چاہوں گا اس کو، کیونکہ وہ دہرانا اور اس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مقدس نشانی کی توہین کریں گے اور اس کو اس سے جوڑنے میں ہم توہین کریں گے۔ میرے خیال سے ہم ہی اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اتنی عزت اور وقار دیا جائے۔ ہم نے جو نسلیں آگے ٹرین کر کے بھیجی ہیں، وہ جو کوہرام مچا رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، دن رات ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ کے بچوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کے اور یہ تمام تحریریں پڑھ کے اب مجھے نا خود پہ شرم آتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ پاکستان حاصل کیوں کیا تھا، تمہارے ساتھ ہو کیا رہا تھا اور وہ کیا جذبہ تھا جس نے تمہیں ایک قوم بنایا، تمہیں جوڑ کے رکھا، نہیں بتا سکے۔ اس کے سراسر ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جن کے بچے سڑکوں پر یہ ادھم مچاتے پھر رہے ہیں، اور ابھی اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے جن لوگوں نے ابھی قانون کے ہاتھوں کو ان تک پہنچ گئے ہیں، لوگ پکڑے بھی جائیں گے، تمام چیزیں ہو جائیں گی، لیکن جن لوگوں نے یہ کیا اور گھر بیٹھے وہ یہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ یہ کرتے ہیں، میرے خیال سے ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ کل وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا ملک چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام کہانی اور اس تمام کے تمام ذمہ دار میں والدین کو سمجھتا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی اور ان کو یہ بتانے میں ناکام رہے کہ بیٹا 14 اگست کیا ہے، تمہیں پتہ ہے 14 اگست کا مقصد کیا ہے، اور ہم جو ترانے گاتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے شور مچاتے رہتے ہیں، سفید اور سبز کپڑے پہنتے رہتے ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں، جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جہاں میل نیوٹریشن ہے، جہاں پر عورتیں، بچے، لاشیں اور اس طرح سڑکوں پہ پڑی ہیں اور گدھ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے بتایا ان کو کہ ٹرین آئی تھی جسے قائد اعظم ریسیو کرنے گئے تھے فاطمہ جناح کے ساتھ، اور اس میں لاشیں تھیں، عورتوں کے کٹے ہوئے جسم تھے، ریپ شدہ لاشیں تھیں۔ آپ نے کسی نے بتایا اپنے بچوں کو؟ یہ نہیں بتایا۔ آپ نے ان کو باجا پکڑایا اور سڑک پہ نکال دیا کہ جاؤ ادھم مچاؤ، پاکستان آزاد ہو گیا۔ اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی پہ جتنی شرمندگی برداشت کر رہے ہیں، یقین مانیں یہ آپ کے بیجے ہوئے بیج ہیں جن کے پودے اب آپ کو پھل دے رہے ہیں، اور میں اس دن کا سے خوف کھاتا ہوں جس دن یہ بیج جو پھل آج کو حرام مچاتے پھر رہے ہیں، ان کے بیجے ہوئے پودے، ان کی آنے والی نسلیں سڑک پر کیا کوہرام مچائیں گی اور سڑک کا کیا حال کریں گی اور اپنے لوگوں کا کیا حال کریں گی۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کوئی ویژولز نہیں دکھانے، کوئی کچھ نہیں دکھانا، بہت چسکے لے لیے، بہت سارے ڈرامے ہو گئے کہ وہ لڑکی یہ کرتی تھی، لڑکوں نے یہ کیا، روبوٹ بن گئے، کچھ بن گیا، کیا کیا بکواس جن سی تھی وہ ہوتی رہی سارا دن۔ لیکن کسی نے یہ سوچا کہ اس تمام واقعے کے بعد بے عزت کون ہوا، شرمندہ کون ہوا، کس کی غیرت کے اوپر یہ دھبا لگا؟ ہماری۔ بچے یہاں پر آتے ہیں، کھیلتے ہیں، بڑے بھی یہاں پر آتے ہیں، یہ مینار پاکستان کی یہ اس کو سلائیڈ بناتے ہیں، یہاں تک اوپر تک چڑھتے ہیں، بڑے تماشے کرتے ہیں، سیڑھیوں میں بھی جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہوئی ہے، اس کی ایک لائن ہی اگر آپ پڑھ لیں تو میرے خیال سے آپ اپنی قوم کو بتا پائیں گے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے۔
खूबसूरत लाइन है, ये 26 दिसंबर 1943 को कायज़ ने कही, उनका फरमान लिखा हुआ यहाँ पे। आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुसलमानों को फ़र्द वाहिद की तरह मुत्तहिद कर दिया? इस कौम की बुनियाद क्या थी? इसका आखिरी सहारा क्या था? वो था इस्लाम, वो अज़ीमुश्शान किताब कुरान मजीद, जो मुस्लिम हिंदुस्तान की कश्ती का लंगर है। मुझे यकीन है कि जूं जूं हम तरक्की करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा यकताई पैदा होती जाएगी। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कौम। पढ़ के शर्म आई आपको? अपने इर्द गिर्द देखें, सारे दिन की खबरें देखें। आज के दिन दिल बहुत दुखा हुआ है। तकलीफ़ ये है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी लड़की पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी लड़कों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लड़के शैतान थे, लड़की प्लान करके आई थी, ये था वो था। अपने घर की कहानी उछाल उछाल के पूरी दुनिया को दे दी। मीनार पाकिस्तान आज जो वहाँ के हिंदू हैं दिखाते होंगे कि यहाँ इसके नीचे इस आज़ाद कौम ने, इस आज़ाद कौम के बेटों ने इस आज़ाद कौम की बेटी के साथ क्या किया। शर्म आई? गाफिल न हो खुदी से, कर अपनी पासबानी। शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में। गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ये बंदगी गदाई, वो बंदगी खुदाई। या बंदे खुदा बन, या बंदे ज़माना। डूब जाए, डूब जाए। 14 अगस्त पे हाज़िरी नहीं दे सका मैं इलामा इकबाल के मज़ार पे, तो सोचा था कि बाद में जाऊंगा और सलाम ज़रूर करके आऊँगा, क्योंकि उस दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो शायद हमें यहाँ आने का मौका उस तरह ना मिल सके। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो दिल में एक शर्मिंदगी सी है, दिल में एक परेशानी है कि क्या मुँह लेके आए हम इकबाल के पास। इकबाल वो हैं जिन्होंने मुसलमान को जगाया था, यानी कि जो मुसलमान ख्वाब, हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब मुसलमान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, उनको जगाया, उनकी रूह को बेदार किया। ये इकबाल ही थे जिन्होंने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लेकिन आज मुझे यहाँ पर आके ये एहसास हो रहा है कि हमने मायूस किया है अपने बड़ों को। इसके कसूरवार हम खुद हैं। आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें कि उसने किया, ये सिर्फ वक्त टालेंगे आप और अपने दिल को थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे देंगे कि आप बेकसूर हैं। लेकिन यकीन माने, दिल में गुनहगार हम हैं। जो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ना कौम के गुमराह होने पर, जो लोग चुप कर जाते हैं, जो लोग कुछ बोलते नहीं हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह करते हैं। जो लोग दिल में बुरा जान लेते हैं ना, तो ये कमज़ोर ईमान वाले जिनसे हैं, यकीन माने वो कामयाब नहीं होते। कहा गया है ना कि अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर, कि जो बुराई को रोक सको, कुव्वत रखते हो तो हाथ से रोको, अगर नहीं रखते कुव्वत तो ज़ुबान से रोको, अगर ये भी ना कर सको तो दिल में बुरा कहो। और ये सबसे ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है। लेकिन मुझे यहाँ पर आके ये एहसास हो रहा है कि हमने अपना कमज़ोर तरीन ईमान भी छोड़ दिया है। हमें बुराई लगना बंद हो गई है, जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। आज जब किसी भी जगह पे बुराई होती देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उन्हें गलत कीता ही होना है, उसका कसूर ही होना है। हम ये नहीं सोचते कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और इसी दुनिया में हमने अपने बच्चों को भी भेजना है। आज मुझे यहाँ पर आके ये कहने को दिल कर रहा है कि इकबाल हम शर्मिंदा हैं, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मुसलमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, इसके दिल में थोड़ा सा भी नाम मोहम्मद का नूर है, वो वापस आएगा और ये बुराई के बादल छटेंगे। हम दोबारा अपनी खोई हुई शान, अपना खोया हुआ मान दोबारा पाएंगे इंशाअल्लाह। कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। गाफिल न हो खुदी से,
कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। एला एला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना, किरदार ताहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ये बंदगी गदाई वो बंदगी खुदाई, या बंदा ये खुदा बन या बंदा ये जमाना। डूब डूब जाए, डूब डूब जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार चीमा साहब, जो साबिक आईजी पुलिस हैं और पुलिस की बहुत अहम पोजीशंस पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, और जो पुलिस का और आवाम का ताल्लुक है उसको बहुत बेहतर समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अभी जो वाक़या हुआ लाहौर में, सर वो बड़ा दुख देने वाला था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस दरिंदगी के जो वाक़ये के बाद जो हमारे सूबे के चीफ की तरफ से रद्द-ए-अमल आया कि उन्होंने DIG और जो मुख्तलिफ पुलिस के फोर्सेस के लोग हैं उनको OSD कर दिया, और ऐसे वक्त पे OSD किया जब वो मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी करके फारिग हुए थे, और विदाउट यानी कि इंक्वायरी से पहले उनको OSD कर दिया गया। तो आप इस इकदाम को कैसा देखते हैं पुलिस फोर्स की नज़र से? देखें, इस वाक्य, ये एक वाक्य नहीं है, कई वाकयात हुए हैं जो अब सामने आ रहे हैं। जी जी। इसके कई पहलू हैं। एक ग्रेटर इकबाल पार्क में जो बहुत से अबाश नौजवान शैतानियत का खेल खेला, जी जी, उन्हें उसकी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। वो गिरफ्तार भी हो चुके हुए हैं तकरीबन 100 से ज्यादा लोग। सारे तो नहीं हुए ना भाई, सब तो नहीं हुए जी। अच्छा, और आज ही के मीडिया के जरिए लोगों को पता चला कि, और खातून ने बाद में बताया भी कि उसके साथियों ने 7 बजे भी कॉल की, 7:30 बजे भी कॉल की जी। पुलिस जो है वो, मेरा ख्याल है कि जो मीडिया के जरिए पता चला कि 1-1.5 घंटे के बाद शायद पहुंची। जी सर। अच्छा, इसके अलावा वही आपने भी देखा होगा, रिक्शे में जी जी। एक बेचारी लड़की अपनी शायद वालदा के साथ बैठी हुई है, जी सर। उसके साथ भी किसी लोफर ने ये ज्यादती की। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, ये जो मतवाकर और पहम और मुसलसल इस तरह के वाकयात हैं, ये क्या जाहिर करते हैं? व्हाट डू दे इंडिकेट? हमारी समाजी पस्ती सर, हमारे मुआशरे की पस्ती इंडिकेट करते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों के नुक्ता नजर से बात करूंगा। ये जाहिर करते हैं कि उस इलाके में पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। और पुलिस लोगों को, खास तौर पे कमजोर तबके को, खास तौर पे खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। बिल्कुल सर। अगर कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो, वो उसका इम्पैक्ट और है, जी जी। उसके नतीजे और हैं। वो कहा जा सकता है कि भाई वो डिटरमिनेड लोग होते हैं, फैसला करके जान पे खेल के उन्होंने करना होता है। बिल्कुल ठीक है सर। उस पे बगैर इंक्वायरी के सजा देना मुनासिब नहीं है पुलिस अफसरों को उस सूरत में। जी बिल्कुल ठीक है। मगर यहाँ कि इस तरह लॉलेसनेस है, इस तरह की लाकानूनियत है कि सिविल सोसाइटी ने, शहरियों ने, मीडिया ने भी ये मुतालबा किया है। मैंने खुद पढ़ा है कि ये तो लगता है कि पंजाब जो है ये बिल्कुल लाकानूनियत का गढ़ बन गया। बिल्कुल ठीक सर। इसमें तो हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाए सर। ये तो जो है वो मीडिया के CM पंजाब की कारकर्दगी पे सवाल आ गया है सर। ये तो बिल्कुल आया। ये जो मीडिया के प्रेशर के बाद इनको जिस तरह होता है कि जी ऐसे लोगों को मुतमिन करने के लिए, गोलों से मिट्टी झाड़ने के लिए करना पड़ा है। जी जी। वरना तो ये है कि आम शहरी क्या कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या कह रही है कि जी इनको आम मीडिया में ओपनली आए हैं। बिल्कुल। कि यहाँ जिलों में ऐसे अफसर लगाए जा रहे हैं जिन्होंने जो करोड़ों रुपया देकर तैनात हुए हैं। अच्छा। और फिर ये आम है कि वो सब ये कह रहे हैं कि इनको सिर्फ 2 ही काम है पुलिस को, या माल बनाना या हुकूमती पार्टी के सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। बिल्कुल ठीक। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए इस तरह के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। और ये जो है प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि सबसे बड़े सूबे में कोई ऑनेस्ट, नेक नाम अफसर जो है पंजाब पुलिस का कमांडर मुकर्रर करें और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। बिल्कुल ठीक सर।
یہ پنجاب جو ہے یہ تب کنٹرول ہوگا کہ یہاں نیک نام اور پروفیشنلی کمپیٹنٹ آئی جی ہوگا. چلے سر ابھی تو یہ بھی تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ایسے افسر کو کیسے ڈھونڈا جائے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ ڈوب جائے ڈوب جائے. یہ انٹرنیٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, میں ابھی آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ تمام لوگ جو ان سے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے. جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں, جتنے بھی اینکرز نے, جتنے بھی لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں, وہ یوٹیوب چینل پہ جب آپ جا کے اس کو دیکھتے ہیں اس کے ویوز بڑھتے ہیں, یعنی کہ جتنا آپ نے دیکھا ہو تو جس کا وہ چینل ہوتا ہے اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پھر بہت ساری ایپس ایسی آ گئی ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائیں, چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں, وہ اپلوڈ کریں اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے یا آپ اس کو کہیں گے اس کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اس سارے کے اینڈ میں مقصد ہے پیسہ, روپیہ. یہ کوئی نیک مقصد کے لیے, کوئی ملک میں امن و امان پھیلانے کے لیے, ملک میں اچھی چیزیں, اچھی ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یقین مانیں جتنے بھی لوگ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں, جتنے بھی لوگ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس سے عوام کا فائدہ ہو, اس کے ویوز نہیں آتے. تو تمام کے تمام اینکرز آپ نے دیکھا ہوئے گا, بہت بڑے بڑے اینکرز, میرے بڑے سینئرز لوگ ہیں, میرے سے بڑے زیادہ عقل مند ہیں, وہ تمام کے تمام اس واقعے پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اور وہ پوائنٹ آف ویو جو ان سا ہے سننے کے لیے آپ اس تک جا رہے ہیں. پھر آپ کو صرف ہک کرنے کے لیے, آپ کو وہ بات سنانے کے لیے, آپ کے قریب زیادہ آپ کے کان کے قریب آنے کے لیے اور آپ کو الیور کرنے کے لیے وہ تمام ٹرکس آزماتے ہیں. وہ ٹرکس یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک تصویر لگا دی جاتی ہے لڑکی کی, کسی بھی چیز کی, جو دیکھ کے آپ اس تک پہنچیں گے. آپ اندازہ یہاں سے کریں کہ کیا یہ لوگ بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز بکتی ہے. جس کے اوپر لڑکی کی تصویر ہوگی, جس یوٹیوب ویڈیو کے اوپر جس چھوٹے کلپ کے اندر لڑکی کی تصویر ہوگی, وہ بہت زیادہ بکے گا, وہ بہت زیادہ لوگ دیکھیں گے. یہ میں مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ اپنا, اگر آپ کو میرا یقین نہیں آ رہا آپ جا کے ویڈیوز دیکھ لیں. بہت سارے جن سے ہیں مثبت سوچ رکھنے والے, وہ کہیں گے کہ جی اچھی چیزیں بھی بکتی ہیں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں مثبت سوچ تو رکھتا ہی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں حقیقت پسند بھی ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کھلونا کھیل کھیلا جا رہا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے تھے, اور آج بچے جو یوٹیوب کی پیداوار ہیں, جو یوٹیوب دیکھتے ہیں, ہر چیز یوٹیوب پہ ڈھونڈتے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل کو کیا دکھایا جا رہا ہے. یہ سوچنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. دنیا میں اچھائی اور برائی ہر جگہ پہ ہے. وہ پھل جس کو کھانے سے منع کیا گیا وہ بھی جنت میں ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آپشن دیا اور ان کو علم دیا کہ چوز کرو کہ یہ تم نے کرنا کیا ہے, اور کہہ دیا کہ وہ پھل کھاؤ گے تو ہلاکت ہے, وہ مت کھانا, سب کچھ بتا دیا. لیکن forbidden fruit is always sweet. یہ کہاوت ہے کہ جو جس چیز سے منع کیا جائے اس کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو شجر ممنوع ہوتا ہے اس کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور انسان جو سا ہے اس کی فطرت میں ہے کہ اس نے اس کی طرف جانا ہی جانا ہے. تو یہ شجر ممنوع جس کی لذت بہت زیادہ نظر آتی ہے, وہ شجر ممنوع اصل میں ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس کا حق دیا ہے, اس لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں یہ چوائس کا حق دیا گیا ہے. ہمیں 2 راستے بتائے گئے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ہاں, ہم سے, ہماری نسل سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو یہ راستے بتانا چھوڑ دیے ہیں. ان کو یہ بتانا بھول گئے ہیں ہم کہ بیٹے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بس یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ میری ویڈیو دیکھو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا وہاں پر اور چسکے لو. ہم اصل میں جذبات ابھار رہے ہیں, اور صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے, اپنی ویڈیو بیچنے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو کے چکر میں ہی ہماری نوجوان نسل کہاں کہاں جا کر کیا کیا خطرات اٹھا کر, ایون اپنی جانیں گنوا کر ویڈیوز بنا رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو سنبھالیں. اگر آپ آج اپنے بچوں کو نہیں سنبھالیں گے, یقین مانیں وہ لوگ جو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے سنبھال لیے ہیں, یہ آگ اتنی بڑھے گی کہ آخر میں ایک دن میرے منہ میں خاک, ان کے بچے بھی اسی آگ میں جلیں گے. تو اس آگ کو بجھائیں, خدارا بجھائیں, اس آگ کے اوپر ہاتھ مت سیکیں. میری آپ تمام دانشوروں سے, تمام بڑے صحافیوں سے
तमाम लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है। के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना। यानी जब समाज में कोई प्रॉब्लम हो तो समाजी कारकुन से ज़रूर पूछना चाहिए कि समाज किस तरफ चल रहा है। तो हमारे साथ जो समाजी कारकुन है और स्पेशली जिनको तजर्बा है वज़ीर आला हाउस में काम करने का, उन शिकायत सेल के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, शाहिद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है आपका? शाहिद, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और इंसानियत की तज़लील हुई है। मैं दोनों साइडों से कहूँगा तज़लील हुई है। जो दोनों साइडें थीं वो दोनों साइडें फिशी हैं, अभी तक उनके अंदर चीज़ें जो सी हैं बहाम का शिकार हैं। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत का रद्द अमल आया, स्पेशली जो बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स को इस तरह सस्पेंड कर देना, OSD कर देना, और स्पेशली उस वक्त जब मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी दे के वो अभी फारिग हुए हैं, मेरे ख्याल से वो सो के भी नहीं उठे होंगे और उनको ये खबर मिल गई कि भाई तुम लोग सस्पेंड हो चुके हो, OSD हो चुके हो और तुम लोग अपने ऑफिस में अब नहीं जाओगे। इंक्वायरी से भी पहले मेरे ख्याल से ये बड़ा फौरी रद्द अमल में बड़ा हैसल में हुआ है ये सारा कुछ। आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाह, देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान। मेरे परदादा सर अब्दुल कादर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान बनाया कायद आज़म के साथ मिलके, इलामा इकबाल के साथ मिलके। कि इलामा इकबाल फ़ख्र करते थे मेरे परदादा के बारे में कि जी अगर शेख अब्दुल कादर ना होते, इकबाल इलामा ना होते। तो ये वाक़या देख के इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई है कि एक औरत को जिस तरह लोग दरिंदों की तरह परे हैं, ये इंसान तो रह ही नहीं ना गई, तो जो भी उसके करीब गया वो उसने दरिंदगी दिखाई है। बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ कि खस्तियों की आंखों में आंसू आ गए, ख़वातीन घरों में परेशान, ये किस माशरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं एक आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग नेकी करने में, शर्म बुराई करने में फ़ख्र महसूस करेंगे। तो ये वही वक्त है। और फिर उसका हाल भी बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आए तो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना। हमारी लाहौर की जो इतनी खूबसूरत टीम, बड़ी देर बाद जिसे हम अब महरूम हो गए हैं, DIG हमारे साजिद कियानी साहब, SSP नदीम अब्बास साहब, जहांगीर भट्टू साहब SP, ये वो लोग थे जिन्होंने शहर को बड़ा संभाला हुआ था और इसकी बीन चार गए। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम तो समझते हैं कि ऐसी टीम दोबारा लाना बड़ा मुश्किल है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था। जहाँ तक हम मुहर्रम की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सारी भाई IG साहब की तो ये टीम है, ये यानी तो मुझे तो ऐसा लगा कि IG साहब ने खुद ही अपने बाजू काट दिए। सर ये तो अब देखिए ना, मैं तो अब कह रहा हूँ कि लाहौर जो है ना अच्छी टीम से महरूम हो गए हैं। साजिद कियानी साहब के हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट और कोई थकावट नहीं, और नदीम अब्बास भी इसी तरह चेहरे पे प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छे लोग थे। लाहौर बड़ा सेंसेबल चल रहा था हर तबके के, चाहे वो साफ़ी थे, ताजर थे, सिविल सोसाइटी थी, वकला थे, हर तबके की इज्जत हो रही है। मैं सोचता हूँ कि अगर इंक्वायरी के बाद इनको हटा देते तो जस्टिफाइड हो जाता, लेकिन इंक्वायरी से पहले इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? कि ये जो लॉस हुआ है ये बड़ी देर बाद एक अच्छी टीम आई थी। इशफाक अहमद खान साहब, हम समझते थे कि DIG रह के गए, उनको नहीं कोई भूल सकता, लेकिन उन्होंने, साजिद कियानी साहब ने उनकी कमी पूरी की। इसमें हर घर जो है ना परेशान है, हर जगह पे ये डिस्कस हो रहा है कि एक अच्छी टीम से हम महरूम हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, और मैं दुआ गो हूँ कि हम इस समाज के अंदर ये तमाम जो तब्दीलियाँ, गंदी तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, इनको अच्छाई में बदल देंगे। फिर न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। एला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ये बंदगी गदाई वो बंदगी खुदाई, या बंदाए खुदा बन या बंदाए ज़माना डूब जाए, डूब जाए। जी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, जो स्पेशली इस तरह के पब्लिक लिटिगेशन के केसेस के माहिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, खैरियत है। आपने पकड़ लिया, हम तो आराम से चेहरे सुने कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन आपने रेस्ट करने देते। आप बिल्कुल रेस्ट करने देते हैं। मैं आपके व्लॉग्स भी देख रहा था, आप भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं।
ये सारी जो सूरत हाल बनी है, मैं थोड़ा उससे एक स्टेप आगे आ गया हूँ। जो व्लॉग था आपका, अभी यहाँ पर इकदाम उठा लिया गया है, DIG साहब से लेके SSP और DSP और जो जितने भी पुलिस के ऑफिसर हैं उनकी हायरार्की है उसको डिसमिस कर दिया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस इकदाम को? अच्छा, वैसे तो अगर डिसमिसल करनी थी तो असूली तौर पर तो डिसमिसल बनती है जनाब उस्मान बुज़दार साहब की। आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो है, यानी वो ही नालायकी करने का है ना उनकी कि अभी तक ये मामला ठीक नहीं हो सके। अगर वो ऊपर ठीक होते तो नीचे ठीक होते। यानी आप पुलिस के अंदर जहाँ तक DIG रैंक तक ये सस्पेंड करना, मुअत्तल करना, मैं समझता हूँ ये ज्यादती। और इशू भी ऐसा कोई इशू नहीं है, या तो होना खुदा ना खास्ता कोई कत्ल हो गया है, कोई दहशतगर्दी हो गई है, बहुत बड़ा ऐसा कदम हो गया कि जिसपे आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं। ये वो अपना उस बीबी के बारे में कितनी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि टिकटॉक करके ना उसने आज तक कभी तो सर अजहर भाई उस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो भी एक कंट्रोवर्शियल सी चीज है। लेकिन हम इस वक्त सोसाइटी ने जो कदम उठाया, स्पेशली गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है, मैं वही पूछना चाह रहा था। आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक है कि उस्मान बुज़दार साहब को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो वही हैं। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव को रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए यहाँ बड़ी बात है, लेकिन मेरी देखे ना, मैं चले जरा हम फैक्ट्स पे आ जाते हैं, रियलिटीज पे आ जाते हैं। आप अगर इसको इस सस्पेंशन को जस्टिफाई कैसे कर सकेंगे? यानी हायरार्की को मैंने जैसे बताया ना कि मामले की नौयत देख के कहना कि और मुहर्रमुल हराम भी था अजहर भाई, मुहर्रमुल हराम भी था तो सारी ये है ना वो सारी उधर थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कोई ऐसा वाकया नहीं आया पुलिस को, यानी इस तरह के वाकये तो ना हमारी फोर्सेस का मोरल डाउन करेंगे। यानी उससे आप जानबूझ के मोरल डाउन कर रहे हैं, इसका फायदा तो तीसरा आदमी लेगा। कल कोई भी इस तरह का ड्रामा करेगा और कल आगे किसी पुलिस अफसर के खिलाफ को बदला लेना हो तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ हमें देखना है कि हकायक के सामने, जैसे मैंने कहा कि अगर उस औरत ने बाकायदा इजाजत ली होती है कि मैं यहाँ ये करने जा रही हूँ, इवेंट का आपको पता है 344 लगी हुई है, इस तरह से इवेंट करके अगर पुलिस को इजाजत ले ली होती, इंतजाम ना होता तो फिर तो समझ में बात आती ना। और यहाँ इतने बड़े चीजों को सामने रखते हुए और वो जुरिस्डिक्शन जहाँ है वो PHA की है, असूली तौर पर जिन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो तो PHA की होना चाहिए। लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि हायर ऑफिसर को। अच्छा अजहर भाई, छोटे से आप इसको कानूनी नजर से कैसे देखते हैं? क्योंकि इंक्वायरी हुए बगैर, कोई कंक्लूजन निकले के बगैर ये इक़दाम उठाया गया है और पुलिस की पूरी हायरार्की को उस पे सस्पेंड कर दिया गया, OSD कर दिया गया है। देखिए मैं 155C पुलिस ऑर्डर और बाकायदा अगर मैं पीडा एक्ट सारे सामने देखूं तो पीडा एक्ट में इस तरह से मैंने वो एक सस्पेंशन का एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें सारों को कर दिया और वो IG साहब ने एक इख्तियारात इस्तेमाल की। मैं ढूंढ रहा था रेलेवेंट प्रोविजन में, वो तो आपको रीजनिंग देनी है कि क्या है इनएफिशिएंसी, क्या है आपको यहाँ पर इनएफिशिएंसी साबित कर रही है। अभी आप अगर आपने कुछ करना भी है, कोई क्या इंक्वायरी स्टार्ट की आपने, कोई इंक्वायरी स्टार्ट करके अंडर दी पीडा एक्ट की, फिर तो चले सस्पेंशन की तरफ ले जाए। आप एक सिर्फ एक साइक्लो स्टाइल ऑर्डर बन के आपको ताकत मिली है उस कलम का गलत इस्तेमाल करके। यानी ये सारे में मैंने पहले भी कहता हूँ, आप भी कहते हो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। जुडिशियल इंक्वायरी करके पता चल सकेगा कि अगर पुलिस की हायर ऑफिसर तक इस लेवल तक अगर गलती थी, कोताही थी, फिर आप एक्शन लें। यानी आप जैसे फर्ज करें डिपार्टमेंट इंक्वायरी ना करें, एक सेशन जज हाईकोर्ट के जज को बिठा दें जो बैठकर तय करे कि किसकी गलती थी, उसके बाद एक्शन लें। आप एक्शन लेकर इस तरह के हालात में मोरल डाउन कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर का मान लिया कि जब SHO लेवल तक तो समझ में बात आती है, चले मान ले कोई DSP लेवल तक कोई समझ में बात आती है, लेकिन हायर ऑफिसर की हद तक अगर किसी को सस्पेंड होना बनता है, किसी की मुअत्तली बनती है, जो वज़ीर पंजाब की थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अजहर भाई। और इंशाल्लाह लाहौर आते हैं तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी कानूनी चाराजोई करनी चाहिए कि हम वैसे पुलिस के खिलाफ ही रहते हैं लेकिन अब उनके साथ खड़ा होना चाहिए जहाँ उनको जरूरत है। बिल्कुल भट्ट साहब, मैं सारे इस मामले में आपके साथ हूँ। मैंने टीम के जिम्मे ड्यूटी लगा रहा हूँ। आपने जो कि बात ही ऐसी छेड़ दी है कि सारे मामले को हमें कानूनी, जब हम इस पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर जाएंगे कि ऐसे हालात और वाकयात में सामने क्या SOPs हैं, क्या चीजें हैं, ऐसी चीजों को भी तक रिटन है कोई नहीं, या कानून ऐसा को बना दे, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन इस तरह की एक्शन को मैं नहीं सपोर्ट करता, ना ही गार्ड बनाओ सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो हम तो हर वक्त तैयार हैं हालतों में आने की। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर भाई। ये बंदगी गदाई, वो बंदगी खुदाई, या बंदा खुदा बन, या बंदा जमाना डूब जाए, डूब जाए।
वाक़या दोबारा से मैं आपसे कह दूं कि बहुत ज़्यादा मीडिया पे आ गया, बहुत ज़्यादा बात हो गई, लड़की के किरदार तक पे बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। खातून जो सी है वैसे भी सिनफ़ नाजुक बड़ी नाजुक होती है इस मामले में। आप जब किसी की बहन बेटी के बारे में बात करें तो अपनी बहन बेटी के बारे में ज़रूर सोचा करें। वो जो लोग वीडियो बना रहे थे, वो जो लोग ये सारा कुछ देख रहे थे, अगर वो खड़े तमाशाई बने हुए थे, एक तो उनका शुक्रिया कि चलो उनकी वजह से वीडियो बाहर आ गई, पता नहीं किस नीयत से उन्होंने वीडियो बनाई, वो आगे अच्छी तौर पे इस्तेमाल हो गई। लेकिन जो लोग वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे उनको एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी बहन बेटी भी वहाँ हो सकती थी। वो जो चांद गाड़ी में वाक़या हुआ, जो ऑटो रिक्शे में हुआ, वहाँ पर किसी की बहन हो सकती थी। सोचें क्या मुंह दिखाते आप अपनी बहन को कि आप अपनी बहन की रखवाली ही नहीं कर सके। वो भरा तो राखे होंगे ने भैनों की इज्जत दे, तो किहो जे भरा हो तो दुनिया में जिस शहर में हम रहते हैं भैनों तो सबकी साझियाँ होती हैं। किसी यार दोस्त की भैन भी हो ना तो भैन कहीदा उन्होंने। ये लाहौर शहर की सकाफत है कि किसी यार की भैन नूं भी सक्की भैन समझीदा है। तो भैनों तो सब दियाँ साझियाँ होंदियां ने, तो उन्होंने राखी नहीं कर सके, फिटे मूँह ऐसे भरावां दे उत्ते। यही कहूँगा मैं, इसके बाद लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, दुनिया से सुनते आ रहे हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक तरह करें। अपनी बहन बेटियां जो इस्तेमाल कर रही हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है जब आप ये इस्तेमाल करें ये ख्याल रखें कि आपके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त आपके हाथ में है। आप उस इज़्ज़त को लेके चल रही हैं कि आप अगर अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं बचा सकती तो फिर क्या कह सकता हूँ मैं। बस यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।